Hello and welcome to Before Exams. Here we help you to prepare for your competitive examinations. Subscribe to our channel so that whenever we post the content about your exam, you get the notification about it. Hello everyone. In today's video, we will be talking about income and expenditure as a topic in economics. So as we know that income and expenditure serves as the major topics in economics because both the terms basically constitute economics. और economics बनते ही तब है when we talk about income and how we spend it, whatever the expenditure that we derive, that is derived from that very income, and whatever benefits that this particular income serves to us, वो सारी चीजें when compiled together forms economics. So it is very important to talk about income and expenditure in economics as a criteria. So जब भी बात इनकम की आती है एंड एक्सपेंडिचर की आती है तो देयर इज दिस टर्म कॉल्ड बजट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान जो कि बताता है दैट हाउ द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज sort of used, how it is expected to be used, and किस तरीके से इसका यूसेज जो है हम करते हैं, कितना पैसा हमारे पास है, उसे कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, हमारी कितनी इनकम है. सो ऑल दैट फाइनेंशियल प्लान इज बेसिकली अ बजट. बजट आपका हाउस होल्ड बजट भी होता है, आपके स्कूल का बजट होता है, आपकी पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां पे एक बजट होता है, एंड देन दिस बजट फॉर द होल कंट्री व्हिच इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक बजट फॉर द कंट्री. तो व्हाई बजट इज नीडेड? तो जब भी इस बारे में बात होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट बजट इज नीडेड टू मेक श्योर दैट मनी इज अवेलेबल टू कवर ऑल द कॉस्ट्स. यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट इज नथिंग बट द खर्चा that you witness in any of the field, be it your इकोनॉमिक कॉस्ट, आपकी अगर कंट्री की बात कर रहे हैं तो, या फिर आपके घर का खर्चा, तो ये हाउस होल्ड कॉस्ट. It is also needed to reduce the very risk of impulse buying. What is the meaning of impulse buying? Impulse का मतलब है when you take decisions on the basis of spontaneity, when you spontaneously buy something. मार्केट गए थे 10,000 का सामान खरीदने, लेकर आए 20,000 का. So that becomes your impulse buying. Also, it is needed to avoid a build-up of debt and to save money for rainy day. यहाँ पे रेनी डे का मतलब लिटरली रेनी डे नहीं है. रेनी डे का मतलब है कंटिंजेंसीज, कि हम मनी इसलिए भी बचाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी कंटिंजेंसी हो तो हम उस पर्टिकुलर पैसे का उपयोग सही जगह पर कर पाए. इट इज ऑल्सो नीडेड टू अवॉइड बिल्डअप ऑफ डेट. हमारे ऊपर खर्चा बढ़ता चला जा रहा है. सो क्यों बढ़ता चला जा रहा है? बिकॉज ऑफ आवर स्पेंडिंग हैबिट्स. वी आर नॉट appropriately spending the money that we have. The income and expenditure ratio is not balanced. So that is your buildup of debt. तो इसे avoid करने के लिए भी we need it. Now, moving on. What is income? In all the previous videos, this term has appeared a number of times and we have read about it in a theoretical way as well, जहाँ पे मैंने पूरी definition with all due regard to the books and the scholars who have given the definition of income, उन सबके according I've told कि income होती क्या है. So it is basically money or a benefit in a kind you receive. अब किसी भी तरीके का बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट किसी भी काइंड में आपको मिल रहा है, यानी किसी भी प्रकार से आपको मिल रहा है, तो दैट बिकम्स योर इनकम. यहाँ पे क्या प्रकार की बात हो रही है? प्रकार इज बेसिकली इनकम दैट यू अर्न फ्रॉम योर ऑफिस, इनकम दैट यू अर्न इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, किसी भी तरीके की इनकम या कोई भी ऐसा मॉनेटरी sort of gift, monetary incoming that you experience in life is your income. It can be regular, irregular and benefit in kind. तो basically 3 टाइप की इनकम होती है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि what are these 3 types. But just to be well aware of the fact, ये 3 चीजें ओवरव्यू में आपको याद रखनी है. that income can be regular, irregular and benefit in kind. तो जब हम रेगुलर इनकम की बात करते हैं, इट इज वॉट यू आर श्योर ऑफ रिसीविंग. आपको पता है कि आपने 2 घंटे ऑफिस में काम किया है, तो वेज रेट के अकॉर्डिंग लेट्स से आपको
500 रुपीज पर आवर के हिसाब से आपके 1000 रुपए पक्के हैं, तो दैट इज योर श्योर ऑफ रिसीविंग। आप इसे फ्यूचर में प्लान कर सकते हो कि मैंने ऑफिस में नौकरी ली है 40,000 रुपए में, तो मेरी इनकम 40,000 तो घर पे आएगी आएगी, और सब कुछ कट कटा के चलो 35 आ जाएगी। उस 35 को मैं पहले से प्लान करके एडवांस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्पेंड करने का प्लान कर सकता हूँ। सो दैट बिकम्स योर रेगुलर इनकम, यू आर यूज टू इट, वी ऑल आर अर्निंग, तो दैट इज आवर रेगुलर इनकम। इसका एग्जाम्पल है हमारी वेजेस, सैलरी एंड चाइल्ड बेनिफिट। इरेगुलर इनकम ऑन द अदर हैंड इज समथिंग दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ रिसीविंग। ठीक है, हम इसे पहले से एडवांस में प्लान नहीं कर सकते। हम ये नहीं प्लान कर सकते कि कल तो मेरी लॉटरी लगेगी 1 करोड़ की, तो मैं अभी से इसे प्लान करके चलता हूँ। दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट प्लान इन एडवांस कि आप इसे स्पेंड कैसे करेंगे। दीज आर अनसर्टेन इन नेचर, और ऐसा कभी कभी होता है दैट यू विटनेस सच सॉर्ट ऑफ इनकम। अगली है योर बेनिफिट इन काइंड। बेनिफिट इन काइंड का मतलब है एक सॉर्ट ऑफ नॉन मनी इनकम जो कि हमें काम करने से ही मिलती है। नॉन मनी इनकम यानी कि किसी भी तरीके का आपका इंसेंटिव या आपका कोई भी बोनस, जैसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई है ऑफिस के अंदर, स्टाफ को बोला जा रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो वी विल बी गिविंग यू 5,000 रुपीज एडिशनल टू योर रेगुलर इनकम, तो दैट बिकम्स योर बेनिफिट इन काइंड। काम के हिस्से में ही ये होता है, बट दैट इज व्हेन यू परफॉर्म इन अ सर्टेन वे, दैट इज व्हेन यू डू समथिंग ऑफ अ काइंड जो आपने पहले ना किया हो। तो इट इज ऑल्सो अनसर्टेन इन नेचर, बट दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट टाइप्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बूस्टिंग द मोरल। एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बिकॉज ऑफिस में अगर हम देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर वी सी ऑन अ डेली बेसिस, इवन आवर पेरेंट्स डू सो, उन लोगों को बोला जाता है कि इफ दे परफॉर्म इन अ सर्टेन वे तो उन्हें कुछ ऐसी बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि उनकी सैलरी को एड ऑन कर देंगे। सो दे वर्क हार्ड फॉर दैट, बिकॉज उस पर्टिकुलर चीज से आप एडिशनल प्लानिंग कर सकते हैं। एक प्लानिंग जो आप अपनी रेगुलर इनकम के साथ कर रहे हैं, एंड देन कम्स द एडिशनल प्लानिंग। लाइक इफ इनिशियली आई वाज प्लानिंग टू बाय अ कार एंड आई एम गेटिंग 5 या 10,000 रुपीज मोर, तो आई कैन बाय कोई भी ऐसी कमोडिटी जो घर के काम आ सके। सो दैट बिकम्स योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट पहले से ही। So they are of certain types, like wages could be a prominent example. Then salary. Salary is the regular income that one receives from doing a job in according to the time spent at it. So these are your wages and salaries. Okay. Moving on. We have certain types of employee income as well. तो ये कुछ टाइप हैं जो कि इनकम किस किस तरीके की होती है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉय इनकम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये किस तरीके की होती है। तो देयर आर ऑल दीज टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय इनकम। सबसे पहले आती है हमारी टाइम रेट इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है योर टाइम रेट इनकम। टाइम रेट का मतलब है गेटिंग पेड पर आवर्स वर्क। जैसे मैंने 4 घंटे काम किया, मेरा वर्क आवर जो रेट था दैट वाज प्री डिसाइडेड, प्री डिटर्मिन्ड, और मुझे बताया गया था जिस ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ दैट यू विल बी गेटिंग ₹600 पर आवर। सो यहाँ पे आई वर्क फॉर 4 आवर्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन इजीली प्री डिटर्मिन द पर्टिकुलर अमाउंट, दैट टाइम रेट अमाउंट, जो कि मैंने पहले ही इंसेंटिव के बेस से निकाल लिए कि अच्छा चलो मैं अगर 5 घंटे पढ़ूंगी तो 5 घंटे काम करूंगी तो इतना होगा, 4 घंटे काम करूंगी तो इतना होगा। सो दिस इज समथिंग फॉर विच यू आर paid per as according to the hours you work for the particular entity. Then comes a piece rate. Piece rate is basically getting paid per number of products that are produced. So it is as per the number of products that are produced. Unit base भी बोल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल होता है the unit rate. तो piece rate जो है वो इतना कॉमन यहाँ पर नहीं होता है इंडिया के अंदर, बट इट इज ऑल्सो अ सिस्टम। पीस रेट सिस्टम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि वेज सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसमें बोल दिया जाता है कि आपने इतना यूनिट आउटपुट निकाला तो यू विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट, और ये पहले से ही फिक्स होता है। तो जितना भी वेज जो है अर्न करेगा वो वर्कर, वो इस फॉर्मूला को देख के निकाला जा सकता है कि कितना आउटपुट है उसका या कुछ भी है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे आपने अपनी रेगुलर इनकम अर्निंग्स को आपने नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दिया तो आपका आर्ली रेट आ गया। अब उसी पर्टिकुलर आवर को आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इस महीने इतने घंटे काम करूंगा तो आपका रेगुलर पे रेट आ गया। ठीक है, आर्ली रेट आपने आर्ली रेट निकाल लिया अपना 400 रुपए, और आपने
गोल बना लिया कि ठीक है इस हफ्ते 40 घंटे काम करना है, तो आपका जो क्या था आर रेट था उसे आपने अपने प्लान्ड आवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका क्या आ गया, पीस रेट आ गया, आपकी आउटपुट पहले से ही निकल गई कि आपको कितना काम करना है. ओके, देन वी हैव आवर कमीशन. कमीशन तो एक बहुत ज्यादा फेमिलियर टर्म है, डे टू डे बेसिस पे भी कम अक्रॉस दिस. इट इज नथिंग बट द एडिशनल इनकम दैट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. एडिशनल इनकम, ये बात याद रखना, ए आई, एडिशनल इनकम. एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका. लेट्स से एक लड़की है, शी अर्न्स 5% कमीशन ऑन एवरी यूरो वर्थ ऑफ क्लोथ्स शी सेल्स. यूरो नहीं, चलो इंडियन रुपीज में लेके चलते हैं. तो शी अर्न्स 5% कमीशन ऑन एवरी INR वर्थ ऑफ क्लोथ शी सेल्स. तो अगर वो 200 INR सर्च कर रही सेल कर रही है, 200 रुपीज की सेलिंग कर रही है, तो शी इज गॉटन 5% कमीशन. तो कितना होगा उसका टोटल कमीशन? दैट इज सिंपल, 5/100 इंटू 200, जितना भी उसका वो डिसाइड किया. ठीक है, तो जो भी निकलेगा दैट बिकम्स द कमीशन. कमीशन, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इट इज एन एडिशनल इनकम कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. हमने ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा ऑफिस वर्क कल्चर के अंदर सुनी है कि अगर आप 1 लाख की सेल कराते हैं तो यू विल बी गेटिंग 10% कमीशन, यानी उस सेल के ऊपर जो 10% है वो आपको आपकी इनकम में ऐड होकर मिलेगा. दैट बिकम्स योर कमीशन. एंड ये भी एक तरीके से रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी है, ये भी आपको आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है. Okay, then we have our basic wage. Basic wage, नाम से ही you can clearly undermine, it is the regular weekly payment for the normal hours that are worked. Regular weekly payment for normal hours worked. ठीक है, एक सेट रेट है किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर का. ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज की बात नहीं करते, मीडियोकर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं. पहले से प्रेडिटर्मिन रेट बना लिया है दैट फॉर एग्जांपल 10 रुपए 30 घंटे या फिर 10 रुपए 1 घंटा. 30 घंटे आपने काम किए, हो गए 300 रुपए. सो दिस बिकम्स योर बेसिक वेज, एक सॉर्ट ऑफ मिनिमम वेज, जो इतना तो मिलना ही मिलना है. उसके ऊपर देन हर कंपनी का अपना एक अलग स्टैचर होता है, एज पर दैट वो डिसाइड करते हैं द बेसिक वेज. ओके, ओवर टाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर टाइम? ओवर टाइम होता है जब आप एडिशनल आवर्स काम करते हो. एक तो होते हैं आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स. नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर योर ऑफिस आवर्स. लेट्स से यू वर्क 9 to 5, आपके 6 या 7 घंटे का इज योर ऑफिस आवर. एक दिन आपको लगा या हफ्ते में 3-4 दिन आपको लगता है कि चलो 2-2 घंटे और काम करते हैं, सो दैट द वर्क is completed on time and that मेरी productivity भी increase होगी and then everybody will think that I'm an efficient employee. हम ये नहीं बोल सकते कि everybody will think, usually people do that for the sake of their own productivity. तो हाँ, people who take their work seriously they do overtime. Overtime इसलिए किया जाता है to enhance the overall productivity and to earn the maximum benefits one can. So overtime is the additional payment for working over your normal hours. इसका एक example लेके चलते हैं. Let's say time and a half. Okay, so let's say 10 rupees plus 1.5. So that becomes your 15 rupees per hour. डबल टाइम लेके चलते हैं तो वो गया 10 rupees into 2, that is your 20 rupees per hour. एक हम ट्रेबल टाइम भी लेके चल लेते हैं, 10 rupees into 3, that becomes your 30 rupees per hour. So that is your overtime, hourly base for whatever additional benefits you're getting or additional working hours that you've added into your normal working hours becomes your overtime. And overtime तो हर एक इंडस्ट्री में प्रेवलेंट है इंडिया के अंदर. एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसका. लेट्स से एक लड़की है, शी रिसीव्स 20 rupees per hour for a normal 30-hour week. ऑलराइट, और एंड डबल टाइम फॉर ओवर टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर उसका 32-hour वीक में कितना पैसा होगा? एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि दोबारा आई एम रिपीटिंग, देयर इज दिस गर्ल, लेट्स से उसका नाम है रेखा. रेखा रिसीव्स 20 rupees per hour for a normal 30-hour week and double time for overtime. तो वो कितना अर्न करेगी फॉर अ 32-hour वीक? यहाँ पे 2 घंटे ऐड हो गए हैं. तो बेसिक पे क्या थी? 20 रुपए हर 30 घंटे के काम के लिए, मतलब 20 रुपए पर घंटा, और काम करती थी 30 घंटे. तो कितना हो गया? 20 into 30, दैट इज इक्वल्स टू 600 rupees. यहाँ पे ओवर टाइम बढ़ा है उसका 2 घंटे का, और तो टोटल कितना हो जाएगा? It will be equals to your 680 rupees. All right. Okay.
नेक्स्ट टॉपिक इज योर ग्रॉस वेज। ग्रॉस वेज जो है वो है आपका बेसिक वेज प्लस ओवर टाइम बिफोर डिडक्शन। तो ये बात याद रखना, ग्रॉस वेज बिकम्स योर बेसिक वेज प्लस ओवर टाइम आफ्टर डिडक्शंस। अगर हम इसका एक और एग्जांपल लें तो वी कैन, अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि ग्रॉस वेज जो है वो है आपका टोटल अमाउंट दैट यू पे एन एम्प्लॉय बिफोर यू विद होल्ड द टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस। सो बेसिकली क्या होता है कि जो पेरोल विद होल्डिंग्स है किसी भी एम्प्लॉय की, जो एम्प्लॉयज टेक होम पेरोल होती है वो सिग्निफिकेंटली लेस होती है उसके ग्रॉस वेज से, ये बात याद रखना। तो as I said, it is the total amount that you pay an employee before you withhold the taxes and the other prominent deductions. All right. Moving on, we have this thing called gross wage. We have done. Yes. Now we have net wage. Net wage. हमने जब definition की थी gross and net की, जब हम GDP कर रहे थे in the videos, we talked about gross and net का difference. Alright, तो your net wage is basically your take home pay, यानी इतना तो घर जाएगा ही जाएगा after deductions. So basic pay plus overtime after deductions becomes your net wage. ग्रॉस वेज क्या था? बेसिक वेज प्लस ओवरटाइम बिफोर डिडक्शंस, यानी अभी डिडक्शंस हुए नहीं है। एंड यहाँ पर क्या हो गया नेट वेज के अंदर, यहाँ पे डिडक्शंस के बाद और बेसिक पे को ऐड करके वट एवर अमाउंट you're getting becomes your net wage. Alright. अब बात करते हैं डिडक्शंस की। बहुत बारी वर्ड वी हैव विटनेस्ड। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिडक्शंस? तो डिडक्शंस दो तरीके की होती हैं, वॉलंटरी डिडक्शंस एंड इनवॉलंटरी डिडक्शंस। वॉलंटरी डिडक्शंस आदमी की चॉइस के ऊपर होती है, एम्प्लॉय की चॉइस के ऊपर होती है। एंड इनवॉलंटरी डिडक्शंस होती है आपके कंपल्सरी डिडक्शंस, जैसे आपको सरकार को टैक्स देना ही देना है, आपको यूनिवर्सल सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा, तो दैट बिकम्स योर इनवॉलंटरी डिडक्शन। एंड वॉलंटरी डिडक्शन इज योर चॉइस, लाइक आपको पेंशन के लिए कटवानी, मेडिकल इंश्योरेंस, सेविंग्स करानी है, ट्रेड यूनियन फीस, दैट बिकम्स योर वॉलंटरी डिडक्शंस। दो टाइप हो गए, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ओके, नाउ हमारे कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस भी होते हैं। नाम में ही स्टैट्यूटरी आ गया, लाइक द समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो ये होते हैं आपकी जैसे PAYE डिडक्शंस। PAYE होता है पे एज यू अर्न डिडक्शन। तो इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ केयर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। तो ये कुछ डिडक्शंस होते हैं जो आपकी सैलरी से करे जाते हैं। एक होता है इनका आपका PRSI डिडक्शन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। PRSI is your pay related social insurance. ये तब कलेक्ट करा जाता है, it is collected as a contribution by the employee towards social welfare benefits. All right, it is a contribution by the employee towards the social welfare benefits. इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, like old age pension, unemployment benefit, etc., etc. So this becomes your pay related social insurance. All right. Now we will move on to the next topic, that is your expenditure. Expenditure is a very important topic. Income का पूरी डिटेल आपने ले ली। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक्स की, कि होता क्या है एक्सपेंडिचर। जब इनकम है तो एक्सपेंडिचर होगी, सब लोग, हाँ एक हद तक you can invest, but there's definitely a need to spend on few things that are your basic life needs, and अलग voluntary and involuntary needs होती हैं आपकी. So what is an expenditure? Pहले I will define it a bit and then we will move on to these. Okay. An expenditure represents a payment with either cash or credit to purchase the goods and services in the market. All right, it represents a payment with either cash or credit to purchase the various goods and services. An expenditure is certainly recorded at a single point in time. उस time को हम बोल सकते हैं the time of purchase, compared to an expense which is allocated or accrued over a period of time. ओके तो ये जो है हमारी बात हुई एक्सपेंडिचर की। तो टू रिकॉर्ड द अकरेंस ऑफ एन एक्सपेंडिचर एंड a particular person who is taking care of it must show the evidence of the transaction occurring. तो ये तो तरीका है कि how we talk about it.
अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में भी फर्क होता है, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में स्लाइट सा डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर इज द टोटल परचेज प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी खरीद रही है 10 मिलियन पीस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, एस्टिमेट उन्होंने लगाया उसका कि 5 साल तक ये चलेगा, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये उन्होंने 10 मिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। Expense, on the other hand, is the amount that is recorded as an offset to revenues or income on a company's income statement. अब यही वाला example, the same 10 million piece of equipment with a 5-year life has a depreciation expense of 2 million each year. ठीक है, तो ये जो हर साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग गया है, दैट बिकम्स योर एक्सपेंस ओवर द सेम एक्सपेंडिचर दैट यू हैव टेकन। लगाई तो थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, बट उसकी मेंटेनेंस में भी तो खर्चा होगा, तो दैट वेरी खर्चा हियर बिकम्स योर एक्सपेंस, एंड इट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। ऑलराइट, अब एक्सपेंडिचर के भी सर्टेन टाइप्स होते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, सो वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल एक एक करके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर के प्रोमिनेंट 3 टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फिक्स्ड, इरेगुलर एंड डिस्क्रिशनरी आर द प्रोमिनेंट 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, अब फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का मतलब है स्पेंडिंग मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली, दैट इट इज एन अमाउंट दैट डज नॉट वैरी। आप अपने घर में, यू कैन टेक एन एग्जांपल, यू कैन टेक एग्जांपल इन योर ऑफिस का एक्सपेंडिचर। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, हमें हमें प्रिंटर के लिए A4 साइज शीट्स चाहिए, तो कितनी शीट्स आएंगी एक कंपनी के, अगर हम बोले कि प्रिंटिंग कॉस्ट जो आएगी कितनी आएगी, तो वो शीट्स तो हर महीने चाहिए, वरना काम कैसे होगा ऑफिस का। तो दीज आर सर्टेन फिक्स्ड एक्सपेंस, वो तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जाना ही जाना है, सो दीज आर दी फिक्स्ड एक्सपेंसेस और द एक्सपेंडिचर। इसी में देयर इज वन एग्जांपल कॉल्ड इरेगुलर। इरेगुलर में होता है आपका स्पेंडिंग मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली, बट जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो दैट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज हमें खरीदना था सामान, तो वो लेट्स से 1 लाख रुपए की कॉस्ट पे मिला, और हमें अगले महीने भी खरीदना है, बट उस टाइम शायद 80,000 का मिले या शायद 1,20,000 का मिले। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो वेरी कर जाती है, अमाउंट बेसिकली। फिर आता है हमारा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। इट इज स्पेंडिंग मनी ऑन थिंग्स वी वांट बट वी डू नॉट नीड, ठीक है, तो दिस इज योर डिस्क्रिशन, वेदर यू वांट टू बाय इट और यू डोंट वांट टू बाय इट। आप खरीद लेते हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट यू सर्टेनली डोंट नीड इट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल कर सकते हैं हम फिक्स्ड, इरेगुलर और डिस्क्रिशनरी के। जैसे कि हम फिक्स्ड की बात करें तो रेंट है, रेंट तो जाएगा ही जाएगा, मॉर्टगेज लगना ही लगना है, इंश्योरेंस जाएगा ही जाएगा, तो दैट बिकम्स योर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। इरेगुलर एक्सपेंडिचर, फोन के बिल, ग्रोसरीज, क्लोथ्स। आज फोन का बिल 10,000 का आया है, अगले महीने 5,000 का हो सकता है, उससे अगले महीने शायद आए ही ना, तो दे वैरी। ग्रोसरी बिल्स हमें पता है दे वैरी। देन हमारे क्लोथ बिल्स, ये कुछ इरेगुलर एक्सपेंडिचर्स होते हैं। देन वी हैव द डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि प्रेजेंट्स हो गए, हॉलीडेज हो गई, एंटरटेनमेंट, मैगजीन्स, ये सारी चीजें आती हैं आपके एक्सपेंडिचर में, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर में। यू पे फॉर दैट बट यू डोंट रियली नीड इट। Okay. Another most important and prominent example is your current expenditure. Current expenditure is the spending money on day-to-day items. ठीक है, like I need this today, I'm spending on it, like your newspaper. ठीक है, your grocery products, then e-tables, ये सारे आपके current expenditures हैं. You pay on them on a daily basis. Then comes your capital expenditure. कैपिटल का मतलब है व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन ड्यूरेबल आइटम्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज। अभी तो यू हैव स्पेंट ऑन देम बट they have a long run वाली capacity, like you spend on car, you spend on household machinery, then you spend on let's say washing machine, so these things have a long term usage durability. Another is your opportunity cost. It is certainly the item that we do without when we have to make a choice between 2 or more actions. ठीक है, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, चॉइस ए चॉइस बी, पेन लूं या पेंसिल लूं। तो फॉर द टाइम बीइंग आई नीड पेन, सो आई कैन अवॉइड पेंसिल, राइट, सो दैट बिकम्स माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पेंसिल खरीदने से बच गई, पेन से यूज कर लिया।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आपके पास 50 रुपए स्पेंड करने के लिए, या तो आप एक कहीं पे कोई गेम खेलने जा सकते हो, या फिर आप गेम देखने जा सकते हो, या फिर आप वीडियो गेम खरीद सकते हो। तो आपको क्या डिसीजन होगा, या तो आप वीडियो गेम खरीद लोगे या उस टाइम पे टिकट लेके गेम देखने चले जाओगे। दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, हमने बिल्कुल बिगिनिंग में बात की थी इम्पल्स बाइंग की। इम्पल्स बाइंग जो मैंने बोला था दैट वी विल डिस्कस इट एट अ लेटर स्टेज। इम्पल्स बाइंग होती है व्हेन यू बाय प्रोडक्ट्स विदाउट थिंकिंग बिफोर। ठीक है, आप गए थे 1 या 2 हजार रुपए की शॉपिंग करने, and you went there and you spent 10,000 rupees in the heat of the moment without thinking. So the decision that you took was impulse decision. So that becomes your impulse buying. एक आती है, there is this topic called false economy. False economy होता है जब हम कुछ खरीदते हैं because it is cheap, बट लॉन्ग रन में हमें वो ज्यादा कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ती है। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं दैट वी हैव टेकन इन, वी हैव सीन इन आवर डेली लाइव्स व्हेन वी बाय सेकंड हैंड कार्स और मोटरसाइकिल्स। सो फॉर द टाइम बीइंग वी बाय देम टू सेव द मनी। हम 50,000 में 1 लाख रुपए में सेकंड हैंड चीजें खरीद लेते हैं, बट हम उन्हें कितने दिन चला पाते हैं, 6, 7, 8 महीने। उसके बाद जो मेंटेनेंस पे उनके खर्चा होता है वो उस कॉस्ट को भी डबल कर देता है जो हमारी पहले आई थी। So that is your false economy. Okay, so false economy is also a topic that is a negative or a drawback. Okay, अब हम बात करते हैं नेट कैश की। नेट कैश होता क्या है? नेट का मतलब ही हमने पता करा था बिगिनिंग में। नेट होता है, नेट कैश इज योर टोटल इनकम माइनस योर टोटल एक्सपेंडिचर। दिस इज योर नेट कैश। बस ये आपको याद रखना है दैट नेट कैश इज योर टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। सो व्हाटएवर द अमाउंट दैट यू कम अक्रॉस बिकम्स योर नेट कैश। फिर आता है हमारा ओपनिंग कैश। ठीक है, हमें एक मंथ की बिगिनिंग में हमारे पास कितना मनी अवेलेबल है वो हमारी होती है ओपनिंग कैश, विच इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, जैसे मनी इन द बैंक। तो दैट बिकम्स योर ओपनिंग कैश। Closing cash, on the other hand, is your money that is left over at the end of the month. हमारा सारा खर्चा सब कुछ होके, सब कुछ खत्म होके, then there we are left with certain amount, तो वो हमारा बन जाता है closing cash। वो हमारा surplus हो, deficit हो, हमारी एक छोटी मोटी अमाउंट जो बच जाती है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है which is your net cash plus your opening cash becomes your closing cash. Okay, so these were the topics related to expenditure. Now, expenditure के बारे में let's talk about one more thing. हम certain types of expenditure की बात करते हैं in accounting. ठीक है, तो there are certain types of expenditure in accounting. जैसे हमारा capital expenditure. तो एक कंपनी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कब इनकर करती है? जब वो एसेट परचेज करती है, और वो एसेट जो है दे हैव अ यूजफुल लाइफ। 1 साल से ज्यादा तो अगर उनकी यूजफुल लाइफ है तो वो नॉन करेंट एसेट कहलाते हैं, तो वो हो जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इन मेनी केसेस इट मे बी अ सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्सपेंशन और एन एक्विजिशन ऑफ अ न्यू एसेट विद द होप ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज इन द लॉन्ग रन। तो हर एक ऐसा एसेट देयरफॉर रिक्वायर्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, and it also requires continuous maintenance after that to keep it fully functional. So this is your capital expenditure. एक और एग्जांपल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमने पढ़ा भी है बुक्स में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब होता है जब एक कंपनी को मनी स्पेंड करनी है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट इज फॉर लेस देन 1 ईयर। और ऐसे एक्सपेंडिचर टिपिकली होते हैं ऑनगोइंग ऑपरेशंस में, जब हमें फंड की जरूरत होती है, जैसे कि हमें राइट्स लेने के लिए लास्ट मोमेंट पे कुछ खर्च करना पड़ गया, तो दैट बिकम्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आता है हमारा थर्ड वन, दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एडवांस पेमेंट को बोलते हैं, जो कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए की है। सो दिस इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। ऑलराइट, और ये अरेंजमेंट यूजुअली एक एग्रीमेंट होता है जो कि कंपनी रिसीव करती है फॉर अ सर्विस और अ गुड्स इन द फ्यूचर, बट इट पेज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन एडवांस। सो दिस बिकम्स अ डेफर्ड रेवेन्यू। So ये थे हमारे कुछ important concepts about the income and expenditure in economics. Also,
I shall give one basic overview to what we studied till now. Since we spoke about income and expenditure, तो ओवरव्यू इसका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ जो हमने अब तक पढ़ा वो ये था कि जो प्रोडक्शन है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होते हैं सारे, दे रिकॉर्ड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. वी ऑल नो दैट. And the incomes that are arising from this production, expenditure on production and the resulting saving and investment, हम उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा. So the recording of the information in a series of interrelated accounts allows analysts to formulate the consistent interpretation of the very productive activity जो कि रिजल्ट करती है इनकम एक्सपेंडिचर से, सेविंग से या इन्वेस्टमेंट से. ठीक है, अब जैसे हम जीडीपी की भी अगर बात करें तो इट लाइज एट अ सर्टेन ऑफ द प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग अकाउंट पे. और जीडीपी जो है क्या है? इट इज एन अनडुप्लीकेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग अ पीरियड जो कि फाइनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के टाइम पे अवेलेबल होता है, लाइक विच इज अवेलेबल फॉर फाइनल डोमेस्टिक कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट. तो ये सारी चीजें एड करती हैं in this. And the very income and expenditure account also record the distribution and use of income by the 6 main institutional sectors. तो उनके मैं एग्जांपल आपको दूंगी, जैसे कि हमारा हाउस होल्ड, देन वी हैव आवर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो कि हाउस होल्ड को ही सर्व करते हैं, देन हमारा जनरल गवर्नमेंट्स, ऑल्सो हमारे नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, हमारे नॉन रेजिडेंट्स. और ये सारे अकाउंट जो है वो क्या करते हैं? दे आर्टिकुलेट रेवेन्यूज टू द सेक्टर, और जितना भी करंट एक्सपेंडिचर है सेक्टर का वो भी. ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन अ सेक्टर्स इनकम एंड इट्स एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन एन एस्टिमेट्स ऑफ द सेक्टर सेविंग. इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन ऑर्डर टू नो अबाउट द वेरी सेक्टर कि वो ग्रोथ कर रहा है या वो नहीं ग्रोथ कर रहा है या फिर वो स्टैटिक है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, इसी इनकम एक्सपेंडिचर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर. ऑल्सो द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो सेंट्रल टू द सेक्टर अकाउंट्स. तो जो कि कैपिटल है या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसका फोकस होता है इकोनॉमिक एजेंट्स के डिसीजन पे कि वो किस तरीके से नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे. और जो अकाउंट का रिकॉर्ड है, चाहे वो सेक्टर का करंट पीरियड सेविंग्स हो या मतलब डिमांड मीट कर पा रहा हो या ना कर पा रहा हो, वो भी उन्हीं के हाथ में होता है. And the balance of the capital account also produces an estimate of each sector's net lending. और सेविंग जो है वो ग्रेटर होती है इन्वेस्टमेंट से, और बोरोइंग, सेविंग यानी लेस देन इन्वेस्टमेंट जब हम लेंडिंग और बोरोइंग की बात करते हैं. तो ये पूरा कंटेक्सचुअल डेटाबेस हमें कौन प्रोवाइड कराता है? दैट इज आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और हमारा सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट. ठीक है, सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू. हमने क्या क्या पढ़ा? वी स्पोक अबाउट budget in this video. We had a lecture on the income किस किस तरीके की होती है, रेगुलर, इरेगुलर, बेनिफिट इन काइंड, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय इनकम हमने पढ़ा, हमने एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, और हमने एक ओवरव्यू लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इन इकोनॉमिक्स. एंड विद दिस वीडियो एंड्स. थैंक यू सो मच.